أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. کہنے لگے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. هو الغنی، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں کے اندر میں ہیں. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کے اوپر میں کوئی دلیل اور سند نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسی باتیں بیان کرتی ہو، کہتی ہو کہ جو تم جانتی نہیں ہو. قل، کہہ دو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے خلاف جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوتے. متاع فی الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر میں وقتی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کو واپس لوٹ کر کے آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. ان آیات کی تفسیر کے اندر میں جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ اس آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی. اللہ تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہیں، سارے نقائص سے پاک ہیں. کوئی بھی عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر میں پائی نہیں جاتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی شائن شان یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماوے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
और ये कुरान पाक की आयत न हो, हदीस हो, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी के अंदर, अल किबरिया उ रिदाई, किबरिया तकब्बुर ये मेरी चादर है। फमन नाज़अनी मज़्ज़क़तुहु, जो मेरी चादर को खींचेगा, मज़्ज़क़तुहु मैं उसको टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा, यानी उसको ख़त्म कर दूंगा, फना कर दूंगा। और हदीस शरीफ के अंदर में आया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो अपने आप को अल्लाह की खातिर छोटा मानता है या छोटा समझता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा बना देते हैं। शैतान ने अपने आप को बड़ा समझा और अपने आप को बड़ा माना, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इनकार किया और उसने दलील पकड़ी, अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ, आदम से बहुत अच्छा हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहु मिन तीन, और इस आदम को मिट्टी से पैदा किया। ये कहकर के ये बताना चाहता था कि आग से जब तूने मुझे पैदा किया तो आग के अंदर में सिफत और खासियत ऊपर जाने की है। आग ज़मीन के ऊपर में जलाएंगे, सुलगाएंगे तो ज़मीन में आग नहीं जाएगी, आग ऊपर जाती है। और मिट्टी की खासियत नीचे आने की है। आप दूसरे माले से, तीसरे माले से बुलंदी से अगर कोई पत्थर या कोई ढेला फेंको तो आपकी हाथ की ताकत जहाँ तक लगी हुई है वहाँ तक वो ढेला और पत्थर ऊपर जाएगा, उसके बाद में वो ज़मीन की तरफ नीचे आएगा। तो शैतान ये कह रहा था कि जब तूने इसको मिट्टी से पैदा किया तो ये मुझे झुके, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आग के अंदर में सिफत और खासियत ऊपर जाने की है, तो मैं तो ऊपर जाऊँ, मैं सजदा न करूँ। इसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मरदूद कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सारे अयूब से पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात इस बात की लायक है कि उसी की इबादत की जाए, इसी की बात को माना जाए और इसी की बात की इताअत और फरमा बरदारी की जाए। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो बात यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चा बना रखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुब्हानहू, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है यानी अल्लाह की ज़ात पाक है बीवी होने से। अल्लाह की कोई बीवी नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं और अल्लाह ताला मोहताज नहीं। ज़ाहिर बात है कि अक्ली तौर पर आदमी की अगर औलाद नहीं होती तो वो बुढ़ापे का अंदेशा और फिक्र करके किसी की औलाद को मुतबन्ना बना करके रखता है या दत्तक बना करके रखता है कि हमको औलाद नहीं है, बुढ़ापे के अंदर में ये हमको काम लगेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाली है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कवी और ताकतवर है, कभी कमज़ोर होने वाला नहीं है। इसलिए आइंदा ज़माने का उसको कोई डर और खौफ भी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए औलाद को माने। या औलाद इसलिए आदमी मानता है या मांगता है या बनाता है कि अपने पास में जो जायदाद है, जो मिल्कत है, हमारे बाद में उसका वारिस कौन बनेगा कि हमारी औलाद जो वो हमारी माल और मिल्कत की वारिस बनेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुब्हानहू, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। हुवल गनिय्यु, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मोहताज है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, उसी के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो आसमानों में हैं और जो ज़मीनों में हैं। इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहादा, तुम्हारे पास इसके सिलसिले के अंदर में कोई दलील नहीं है, कोई सुल्तान बुरहान नहीं है। उलमा ने लिखा है कि क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद बना रखी है। इससे मुराद
उलमा ने लिखा है कि नसारा है, नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। अभी तक सूरह यूनुस के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का तज़किरा फरमाया था। मक्का के मुशरिकीन की तरफ से जो तकलीफ़ें पहुँचती थी और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तकलीफ़ें पहुँची उनका ज़िक्र फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी आगे वाली आयत के अंदर में। अब यहाँ मक्का मुकर्रमा के अंदर में नसारा भी थे और नसारा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझते थे। तो क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, नसारा ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए औलाद बना रखी है। सुब्हानहू, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। हुवल गनिय्यु, ये बेनियाज है। अल्लाह को औलाद क्या करना है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, उसके लिए वो सारी चीज़ें हैं जो आसमानों में हैं और ज़मीनों में हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन नसारा को फरमाते हैं कि तुम्हारे पास में कोई दलील है या कोई सर्टिफिकेट है या कोई गवाह है कि जो इस बात पर दलालत करे कि अल्लाह तबारक व तआला को औलाद है। नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना था और यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना था और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानी थी। फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को खिताब करते हुए फरमाते हैं कि इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहादा, इसके ऊपर में तुम्हारे पास में कोई दलील और कोई गवाही नहीं है। अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या अल्लाह के ख़िलाफ़ तुम ऐसी बातों को कहते हो जिनको तुम जानते नहीं। कुल, कह दो ए नबी, कह दो इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, बेशक वो लोग कि जो अल्लाह के ख़िलाफ़ झूठ बांधते हैं, ला युफ्लिहून, ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दायमी कानून बता दिया, दायमी निज़ाम बता दिया। नसारा की बात को ज़िक्र किया कि ये अपने दावे के अंदर में झूठे हैं, या यहूद की बात को ज़िक्र किया और बताया कि अपने दावे में झूठे हैं, या मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार की बात को ज़िक्र किया और बताया कि ये झूठे हैं, इनके पास में कोई दलील नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक ये कानून बतला दिया कि इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून, ए नबी कह दो कि बेशक वो लोग कि जो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ झूठ बांधते हैं, ला युफ्लिहून, ये कामयाब होते नहीं हैं। इसके बाद में उलमा ने लिखा है कि ये यहूद और नसारा, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार अल्लाह के ख़िलाफ़ झूठ बांधकर औलाद मानकर अपने आप को कामयाब समझते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मताउन फिद दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने की चीज़ है, अगरचे बग़ैर दलील के और कमज़ोर मुसलमानों पर गलबा पा करके अगर तुम अपने आप को कामयाब समझते हो तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फ़ायदा उठाना वक्ती तौर पर है, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में है। सुम्मा इलैना मर्जिअहुम, फिर हमारी तरफ इन सब को वापस लौट करके आना है। सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश-शदीद, फिर हम उनको सख्त अज़ाब चखाएंगे, बिमा कानू यकफुरून, जो अल्लाह के साथ में कुफ्र करते थे और इनकार करते थे। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर किसी जालिम को, अगर किसी बागी को या किसी अल्लाह के नाफरमान को अगर अल्लाह तबारक व तआला ढील दे दे और वो दुनिया वालों के ऊपर में, इंसानों के ऊपर में या ईमान वालों पर जुल्म करे, तो उसकी वजह से ये न समझा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी है। कुल मताउद दुनिया कलील, मताउन फिद दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाना है। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि उसको दुनिया के अज़ाब से हिफाजत करके और दुनिया के मामूली अज़ाब से बचाकर आखिरत के बड़े अज़ाब के अंदर में उसको मुब्तला कर दे।
कुरान पाक में दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। दुनिया के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला मामूली अज़ाब, मामूली तकलीफ़ें, मामूली मुसीबतें और मामूली हालात पेश करते हैं ताकि बंदा जो है ये नाफरमानियों से, गुनाहों से, जुल्म सितम से रुक जाए और ताकि आखिरत के बड़ी आदाब से वो बच जाए। सुम्मा नुज़ीक़हुमुल अज़ाब अश-शदीद, फिर हम उनको सख्त आदाब आखिरत के अंदर में चखाएंगे, बिमा कानू यकफुरून, जो कुछ भी वो कुफ्र और शिरक करते थे। यहाँ आखिरी आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब का तज़किरा फरमाया कि दुनिया के अंदर में तो हम छोड़ देते हैं, ढील दे देते हैं, आखिरत के अंदर में हमारी पकड़ बड़ी सख्त है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वत्लु अलैहिम नबअ नूह, वत्लु अलैहिम, उनके सामने तिलावत करो, उनके सामने बयान करो, यानी मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने तुम बयान करो नबअ नूह, नूह अलैहिस्सलाम की खबर, नूह अलैहिस्सलाम की बात, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने बयान करो। अब यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इसके बाद में दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का किस्सा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, आखिर के अंदर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है आगे वाले आयत के अंदर में। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि इन मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। अगली उम्मतों के जो हालात थे और अगली उम्मतों के जो किस्से थे वो किसी तारीख़ और हिस्टोरी की किताब के अंदर में लिखी हुई बातें नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगली उम्मतों के किस्से और अगली उम्मतों के हालात को लोगों के सामने बयान करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये वाज़ेह दलील थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल और नबी हैं। वत्लु अलैहिम नबअ नूह, उनके सामने नूह अलैहिस्सलाम की खबर बयान करो, तो पता चलेगा कि नूह अलैहिस्सलाम की बात का जब लोगों ने इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आज़ाब के अंदर में मुब्तला कर दिया। इद क़ाल लिक़ौमिही या कौमी, इद क़ाल, जबकि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिक़ौमिही, अपनी कौम को, या कौमी, ए मेरी कौम, ए लोगो, इन कान कबूर अलैकुम मकामी व तज़कीरी बि आयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा सुम्मा क़्ज़ू इलैया वला तुनज़िरून। ये नूह अलैहिस्सलाम की जो बातें अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाई है, ये नूह अलैहिस्सलाम के आखिरी ज़माने की है। आखिरी ज़माने से मतलब नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम पर जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया उस ज़माने की ये बातें हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया दावत और तबलीग के ज़रिया से, लेकिन बहुत कम लोगों के अलावा लोग ईमान नहीं लाए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन कान कबूर अलैकुम मकामी, मेरा दावत और तबलीग को लेकर तुम्हारे दरमियान में खड़ा रहना और मेरा तुम्हारे सामने दावत और तबलीग वाले काम को पेश करना अगर बड़ा लगता है या बुरा लगता है, व तज़कीरी बि आयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की निशानियों के ज़रिया से मैं जो तुमको नसीहत करता हूँ और अल्लाह ताला की आयात के ज़रिया से मैं जो तुमको समझाता हूँ, इन कान कबूर अलैकुम, अगर तुमको ये बड़ा लगता है और ये तुमको बुरा लगता है, तो अब तो काफ़ी लंबा ज़माना हो गया, अब तो फैसला हो जाना चाहिए हमारे दरमियान में और तुम्हारे दरमियान में। फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, मैं अब अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद
और भरोसा कर चुका हूँ। फ़अज़्मिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, तुम भी इत्तिफ़ाक़ कर लो अपने काम की और अपने शरीकों को भी मेरे ख़िलाफ़ तुम जमा कर लो। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर अपने जो शरीक हैं जिनको तुम अपने साथ ले करके अल्लाह की मुखालफत और मेरी मुखालफत करते हो, तो एक बात के ऊपर में मुत्तफ़िक़ हो जाओ मेरे ख़िलाफ़, और किसी किस्म का शक और शुबा नहीं होना चाहिए। तुम मक़ज़ू इलैया, और फिर जो है मेरे लिए तुम फ़ैसला कर डालो। वला तुनज़िरून, और मुझे ज़र्रा बराबर मोहलत मत दो, मुझे ढील मत दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिया से ये चैलेंज फेंकवाया उनकी कौम को और उनकी उम्मत को। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम मेरी बात को मानने से रूगर्दानी करते हो और मुंह फिरा लेते हो, फमा सअलतुकुम मिन अजरिन, तो मैंने आज तक दावत और तबलीग के नतीजे के अंदर में तुमसे मैंने कोई मजदूरी मांगी नहीं थी, मैंने कोई मुतालबा नहीं किया था। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, बेशक मेरा अजर और मेरी मजदूरी ये तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है। व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह के ताबेदार और अल्लाह के फरमा बरदार बंदों में से बन जाऊँ। दावत और तबलीग के नतीजे के अंदर में अगर तुम मुझे तनख्वाह देते हो, या दावत और तबलीग के नतीजे में अगर तुम मुझे अजर और मजदूरी देते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी तनख्वाह को बंद कर डालो और मजदूरी को बंद कर डालो। शुरू से मैंने तुमसे कुछ मांगा ही नहीं। इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अजरिन, उलमा ने लिखा है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो दावत और तबलीग का काम किया, ये लिल्ला फिल्ला किया। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हर नबी की ये सिफत थी और हर नबी की ये खासियत थी कि दावत और तबलीग के नतीजे के अंदर में अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह से मुतालबा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि व उमिरतु, मुझे भी हुक्म दिया गया, अन अकून मिनल मुस्लिमीन, कि मैं भी अल्लाह के फरमा बरदार बंदों और ताबेदार बंदों में से हो जाऊँ। फ़कज़्ज़बूहु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की बात को झुठलाया, तो आखिर में क्या हुआ? फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फिल फुल्की वजअलनाहुम खलाइफ़ व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रिन। फ़नज्जयनाहु, नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने झुठलाया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको नजात दे दी। फ़नज्जयनाहु व मन मअहु, और जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे और नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो कश्ती के अंदर में सवार हो चुके थे, उनको हमने नजात दे दी। वजअलनाहुम खलाइफ़, और कश्ती में जो सवार हुए और दूसरे लोग जो हलाक और बर्बाद हो गए, तूफ़ान और अज़ाब के ख़त्म हो जाने के बाद कश्ती में जो लोग सवार थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर में नाइब बनाया, खलीफा बनाया। वजअलनाहुम खलाइफ़, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो ईमान लाए और कश्ती के अंदर में सवार हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नजात दी, और तूफ़ान के ख़त्म हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के अंदर में उन्हीं को खलीफा बनाया। खलीफा बनाने का मतलब ये है, जैसे कि पहले पारे के अंदर में भी आया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खलीफा, खलीफा किसको कहते हैं? खलीफा कहते हैं मखलूक के अंदर में अल्लाह ताला के अहकाम को नाफिज करने वाला, अल्लाह के अहकाम को जारी करने वाला। अब तूफ़ान ख़त्म हो गया, ज़मीन के ऊपर में ये बसने लग गए, और इन्हीं को खलीफा बनाया कि अब अल्लाह के अहकाम को तुम जारी करो, सारी करो। व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और डुबो दिया उन लोगों को जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रिन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानी करने की वजह से पानी के अज़ाब के अंदर में डुबो करके हलाक और बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, फंदुर, देखो, कैफ कान आकिबतुल मुंदरीन, कि ये जिन लोगों को डराया गया था उनका अंजाम क्या हुआ। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे दरमियान के अंदर में मौजूद नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कुरान हमारे पास में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने मानने वालों की बातों को और न मानने वालों की बातों को ज़िक्र फरमाने के बाद, मानने वालों को अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा दुनिया के अंदर में और आखिरत के अंदर में, और न मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर में और आखिरत के अंदर में अज़ाब के अंदर में मुब्तला किया। ये हर ज़माने के अंदर में होता रहा है और हर ज़माने के अंदर में होता रहेगा। आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फरमाते हैं, फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुंदरीन। क़यामत तक ये कुरान पाक पढ़ने वालों को खिताब करता और कहता है, फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुंदरीन, जिन लोगों को डराया गया था और नबियों के ज़बानी और नबियों के हाथों और किताबों के ज़रिए से हमने डराया, लेकिन उन्होंने माना नहीं, तो देखो उनका अंजाम क्या हुआ। सुम्मा बअसना मिन बादिही रुसुलन, फिर हमने भेजा उनके बाद, यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद, रुसुलन, बहुत से रसूलों को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में हज़रत इसहाक है, हज़रत यूसुफ है, हज़रत इस्माइल है और हज़रत याकूब है, ईसा, मूसा, जो भी बनी इसराइल हैं, ये सब के सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे। सुम्मा बअसना मिन बादिही, फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद भेजा रसूलन, बहुत से रसूलों को, इला कौमिहिम, उनकी कौमों की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर तज़किरा फरमाया है कि कौन सी कौम की तरफ कौन से नबी को रसूल बना करके भेजा। फजाऊहुम बिलबय्यिनात, ये रसूल और ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कौम के पास वाज़ेह दलीलों को लेकर, वाज़ेह निशानियों को लेकर, वाज़ेह आयतों को लेकर आए। फमा कानू लियुमिनू, लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए। क्यों ईमान नहीं लाए? बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्लु, इन चीज़ों की पहले ही से नाफरमानी करने की वजह से, तकज़ीब करने की वजह से और जुठलाने की वजह से। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुनिया के अंदर में तौहीद और रिसालत को लाने से पहले जो कौम थी, ये अल्लाह की तकज़ीब कर चुकी थी, अल्लाह को जुठला चुकी थी और तौहीद का इनकार कर चुकी थी, और रसूलों के दुनिया के अंदर में अल्लाह की तरफ से भेजे जाने का इनकार कर चुकी थी। तो रसूलों के आने के बाद जब रसूलों ने दावत दी तौहीद की, रिसालत की, तो वो जुठला चुके। कज़ालिका नतबअु अला कुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह हम मोहर लगा देते हैं। कज़ालिका नतबअु, इसी तरह हम मोहर लगा देते हैं, अला कुलूबिल मुअतदीन, ताअद्दी करने वालों के दिलों पर, ज़्यादती करने वालों के दिलों पर, जुल्म सितम करने वालों के दिलों पर, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के दिलों पर हम मोहर लगा देते हैं। मोहर लगाने का मतलब ये है जैसे कि डाक के अंदर में कोई चीज़ भेजी जाए और उसके ऊपर में मोहर लग जाए तो उसके बाद में कानून के एतबार से उस चीज़ को वापस नहीं किया जाता और उसके अंदर में कोई चीज़ ज़्यादा और कम नहीं की जाती। अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र की वजह से, शिरक की वजह से, जुल्म की वजह से, तकज़ीब की वजह से दिलों के ऊपर में मोहर लगा देते हैं। मोहर लगा देने की वजह से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बात उनके दिलों के अंदर में उतरती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ये भी दायमी तौर पर फरमाते हैं कि कज़ालिका नतबअु अला कुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह हम ताअद्दी और ज़्यादती और जुल्म करने वालों के दिलों के ऊपर में हम मोहर लगा देते हैं। तो ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िक्र किया इस आखिरी आयत के अंदर में, सुम्मा बअसना मिन बादिही रुसुलन, नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने बहुत से रसूलों को भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम
اور دیگر انبیاء علیہم السلام کا تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔